Good morning, students. Today I am going to start your next poem, Aunt Jennifer's Tiger, from your Flamingo textbook, about the poet first. Andrew Rich is the poet of this poem, Aunt Jennifer's Tiger. Andrew Rich was born in 1929 in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essay and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences. Now, just an introduction of this poem. Andrew Rich's poem Aunt Jennifer's Tiger narrates the not so happy experiences of marriages. Aunt Jennifer's makes prancing, sleek, silveric tigers in the panel, but she is in the grip of suffering and terrors. They have crushed her and affected her married life. She has not yet freed herself from the bitter experiences of the past. It is ironical that she can create such sleek and prancing tigers. Now this poem is just about a woman who is not happy, does not have an happy experience in her married life. She is just embroidering a tiger in a panel in a place where the embroidery work has been done, and what she feels while she starts doing the embroidery. Now, the main points of the poem is Aunt Jennifer's tiger jump over across a screen. They are sleek and silveric. They pace with confidence and certainty. She is using ivory needles and fluttering her fingers in the wool to create her tigers. Her fingers find it hard even to pull the ivory needle. The heavy weight of Uncle's wedding band still sits at her hands. Those sufferings and troubles that crushed her during her married life have possessed her mentally and physically. When Aunt Jennifer is dead, her tigers will survive. They will go on prancing, proud and unafraid. Now, these were the main points. Now I am going to read the first para here of this poem. Aunt Jennifer's tiger prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They peace in sleek silveric certainty. Now, prance means jump over. Word meanings of the difficult word. Across, from this to the other end. Screen means a wall, bright, shining, topaz, transparent, yellow. Stone used in jewelry. Denizen, dwellers. World of green, green forest. Beneath, under. Pace, run fast. Sleek, shining and well groomed. Chivalric, honorable and brave. Certainty, confidence. Now, what the paragraph here is. Aunt Jennifer, the woman in this poem, is what she is doing in this paragraph. She has created her tiger in the panel with the ivory needles. Her tigers are jumping across a screen. कौन सी इमेज उसने बनाई उस पर? उसने एक इमेज बनाई, वो टाइगर जो है वो जंप कर रहा है स्क्रीन के बाहर, है ना. These dwellers of green forest look like bright yellow shining topaz. They are fearless and don't fear the men standing under the tree. They are well groomed and smooth. They look honorable and brave and pace with confidence and certainty. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? आंट जेनिफर जो है शेर
कि सिलाई एक पट्टे पर सिलाई कर रही है, शेर की आकृति बना रही है। उसका शेर एक दीवार के ऊपर से आगे की ओर छलांग लगा रहा था। हरे हरे जंगलों के ये निवासी चमकती पीले एक ज्वेलरी की तरह वो लग रहे थे, जो टाइगर उन्होंने एनक्रेव किया था उस पैनल पर। वे पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से नहीं डरते। कौन नहीं डरता? वो टाइगर नहीं डरता जो पेड़ के नीचे खड़े। ऐसा एक एनक्रेवमेंट, एक एम्ब्रॉयडरी उस आंट जेनिफर ने उस पैनल पर उस एक कपड़ा है या एक हार्ड थिंग कह सकते हैं, हाथी दांत का बना हुआ एक पैनल, कुछ भी उस पर उन्होंने बनाया। वे उस रूप को शौर्यपूर्ण निश्चित के साथ वो दौड़ रहे हैं। मतलब उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है उन टाइगर के अंदर कि वो किसी से भी नहीं डर रहे हैं। वो आदमी भी खड़े हैं पेड़ के नीचे तो भी वो इतने ही शाइन कर कर, ग्रूम कर कर वो उनको बिना डरे वहाँ से उनके साथ दौड़ रहे हैं। यहाँ पर यही यहाँ पे ऐसा क्यों एनक्रेव किया गया है इस स्टैंजा में? यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो है एंट जेनिफर जो है अपने मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। वो अपने आप को शायद इन सब बाउंड से बंधी हुई पा रही हैं कि वो फ्रीली कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रही है अपने लाइफ में। यहाँ पे उन्होंने एक टाइगर एनक्रेव किया, शायद अपनी जो इच्छाएं हैं वो इस टाइगर के माध्यम से वो बताना चाहती हैं कि टाइगर कितने बेखौफ होते हैं, निडर होते हैं। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। जो अगर वो फ्रीली जो चीज़ें करते हैं इसलिए वो इतने शाइन करते हैं, इतने ग्लो करते हैं, क्योंकि वो फ्री हैं कहीं भी आने और जाने के लिए। दे आर फ्री इनफ, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी वो लोग आ सकते हैं। यहाँ यही बताया गया है। यहाँ पर से एक बार और हम समराइज कर देते हैं क्या बताया गया है कि वो आंट जेनिफर जो है एक तरह से अपनी शादी के बंधन में वो बोझिल अपने आप को महसूस कर रही है। उनके जो वो क्या ऐसे क्यों महसूस कर रही है, वो उस डायग्राम से, उस एनक्रेव्ड एम्ब्रॉयडरी से हम समझ सकते हैं। उन्होंने उस टाइगर का डायग्राम कैसे, उस एम्ब्रॉयडरी को कैसे उसने उस पर ट्रेस किया उस पैनल पे। देखें कि शेर दीवार पर से कूदते फांकता है, चमकते हुए पीले टोपास पत्थर की तरह वो चमकीले रंग के हैं। हरे जंगलों के ये निवासी आंट जेनिफर के द्वारा उतारे गए हैं उस पैनल पे। मतलब इतने खूबसूरती से उन्होंने टाइगर को एनक्रेव किया है उस पैनल पर, जहाँ वो चाहती है कि वो उस एम्ब्रॉयडरी में वो अपनी इच्छाएं जो शायद नहीं पूरा कर सकती अपनी मैरिड लाइफ में, उस टाइगर के ज़रिए उसमें एनक्रेव किया है उन्होंने। वह उन्हें अपने हाथों से रचती हैं, बनाती हैं पूरा डायग्राम, वो एम्ब्रॉयडरी अपने हाथों से उसमें बनाती हैं। वो जो आदमी पेड़ के नीचे खड़े हैं उनसे नहीं डरते। वे बने ठने शौर्यपूर्ण निश्चित, मतलब बन ठन के बिल्कुल आराम से निडर होके वो दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? टाइगर्स। यहाँ पे इस टाइगर को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि वो बिल्कुल निडर है ना। जो वो चाहता है वो करता है, और वो करता है तो उसके अंदर वो ग्लो आती है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है टोपाज, एक ज्वेलरी स्टोन का, वो इतना शाइन करता है उतना ही शाइन यहाँ पे ये टाइगर भी यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे जो पोएट है एंड्रे रिच, पोएटिस्ट है, उन्होंने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि वुमेन जो है यहाँ पे आंट जेनिफर टाइगर जो उन्होंने हम कह सकते हैं एक कैरेक्टर इसमें डिस्प्ले किया है, वो अपने मैरिड लाइफ से शायद इतनी खुश नहीं है, अपने मैरिज एक्सपीरियंसेस को हैप्पी एक्सपीरियंसेस नहीं है, शायद उसको वो इसी तरह से रिवील करना चाहती है इस पोइट्री के माध्यम से। हम आगे और कल इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।